First thing is two or more person, two or more partners. So a partnership, if we want a partnership to be legally, if we want a partnership to be legal, एक partnership है legal है. When we can call it legal, only when at least two persons are involved. मैंने बोला था ना, you can't say हम शीशे में देख के खुद से ही हम partnership कर ली. नहीं, it is not that. That is different. This is in legal terms. You need at least two persons to create a partnership. Two or more. For example, बाद में एक बंदा और आ गया, ठीक है, चलो एक वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रही है, शीतल भी आ गई, ठीक है, तो तीन पार्टनर हो गए. यस, तो टू और मोर पार्टनर्स. सो दिस वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट फीचर. कैरेक्टरिस्टिक को और क्या बोलते हैं आपको बताया था? फीचर. याद रखना, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट थिंग इज अ पार्टनरशिप हैज टू और मोर पर्सन्स. सेकंड, now second is an agreement. So yesterday I asked you this, so this is very important for the today's class. Please listen to it very carefully. Now we are talking about an agreement. Now I said कि मैंने अक्षय को जाके नॉर्मली बोला कि प्लीज लेट अस ओपन अ बिजनेस, तुम पैसे लगाओ, मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा बाद में. उसने कहा ठीक है ठीक है. बाद में when the business started, अक्षय ने धोखा दे दिया. अक्षय betrayed me and he said, who are you? So how can I legally prove that he agreed that I am also a partner? So it will be very difficult. Yes, partnership open हो सकती है, वो agree करता है आप partner हो. Yes, it is possible. It is not impossible, but it will be very difficult for me to file a case against Akshay. How can I file a case against Akshay when I don't have any proof that he agreed for the partnership? मेरे पास WhatsApp chat भी नहीं है, सब delete हो गया. Now for that, one thing is needed, that is your agreement. Now you may say sir agreement तो oral भी हो सकता है. Orally आपने बोला, वो भी तो agreement ही है ना. Yes, but to prove that it was an agreement, orally prove करना, that will be very difficult. So if the question says, is it possible that a partnership can be formed orally? So the answer will be yes. But इसके साथ हमें ये भी बोलना है that it will be very difficult for a person to prove that it is a oral partnership and किसी को sue नहीं कर पाओगे. Sue means case करना किसी को. So it will be very difficult. So that is why agreement is needed. So you can see partners enter into a mutual agreement. ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है वर्ड, मैंने आपको बोला था दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. पार्टनरशिप डीड. Partners enter into a mutual agreement that is known as the partnership deed, which outlines their rights, duties and profit sharing ratio. Now पार्टनरशिप डीड को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए तो जान लो इट इज अ डॉक्यूमेंट जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है रिगार्डिंग द पार्टनरशिप. So it is a document which specifies all the terms and conditions related to the partnership, right? So agreement is needed. So yes, agreement, ये चीज याद रखना, it can be oral and written. Agreement can be oral or written both. Agreement can be written, agreement can be oral. So yes, it is possible to enter into a partnership orally also. Next, profit and loss sharing. Now what is this? You can see partners share profits and losses as per the partnership deed. So you should have a motive to earn profit and you will share the profit and losses both as a partner. Now let us look at the fourth characteristic. Very important. Now fourth says mutual agency. What is this, sir? What is mutual agency? Now this means one partner will play a role of agent also and principal also. Each partner acts as an agent for the firm and other partners, binding them to be the firm's actions. अगर राहुल ने कोई गलती कर दी उस फर्म में, तो सिर्फ राहुल अकाउंटेबल होगा क्या? नहीं, पूरा फर्म एक साथ है, सब अकाउंटेबल होंगे एक साथ. तो दैट इज व्हाट इट मींस कि एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है. तो प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे दो वर्ड हमें इंपॉर्टेंट है, एजेंट प्लस प्रिंसिपल. ब्रैकेट में एवरी पार्टनर, हर पार्टनर एजेंट है, हर पार्टनर प्रिंसिपल है, राइट? सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. यस. फिफ्थ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड सुन के अच्छा लगता है, मजा आ गया. अनलिमिटेड, नो इट इज नॉट मजा आ गया, इट इज सजा आ गया. हाउ सर? नाउ लिसन. Now unfortunately we were trying very best to run our this XYZ food business. So but unfortunately
वी स्टार्टेड bearing losses, बहुत लॉस होने लगा. तो व्हाट हैपेंड नाउ, टेल मी. फॉर एग्जांपल लॉस हो गया 2 लाख रुपीज. वी हैव टू पे टू द क्रेडिटर्स एज वेल. हमने लोन लिया हुआ था, तो हमें 2 लाख रुपए वापस भी कर, हमें 1 लाख रुपए वापस भी करने. 2 लाख का लॉस हो गया, तो चलो 2 लाख ही वापस करने थे. फॉर एग्जांपल लेट अस मेक द एग्जांपल इजी, अगेन रिपीटिंग. तो देयर वाज दिस बिजनेस एंड नाउ वी वर बेयरिंग लॉसेस, तो प्रॉफिट तो था ही नहीं. वी हैव टू पे 2 लाख बैक जो हमने लोन लिया था. नाउ व्हाट विल हैपन? हु विल पे दिस लोन? टेल मी. ये बताओ मुझे. द फर्म हैज जीरो बैलेंस. फर्म के पास बैलेंस ही नहीं है, तो पैसा आएगा कहां से? दैट इज द वर्ड. फ्रॉम वेयर मनी कहां से आएगी? ये 2 लाख रुपए आएंगे कहां से, ये बताओ. फ्रॉम वेयर विल दिस मनी कम? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो डिसाइड हुआ था, प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग रेशियो एक होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे था इक्वल रेशियो कि तीनों इक्वली 1:1:1. इट मींस तीनों इक्वली शेयर बांटेंगे, अपना प्रॉफिट का भी और लॉसेस का भी. पर मैं पूछ रहा हूँ पैसा कहां से आएगा? समझो यहाँ पे. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक सेज अनलिमिटेड लायबिलिटी. दैट मींस द प्राइवेट एसेट्स एंड द प्राइवेट मनी कैन बी यूज्ड टू पे द फर्म्स डेट. अगर फर्म का डेट है और आप एक पार्टनर हो नॉर्मल पार्टनरशिप में, तो आपके अपने जो आपका पर्सनल सामान है दैट कैन आल्सो बी सोल्ड टू रिकवर द मनी. तो 2 लाख रुपए है ना, तो इन लोगों के अपने एसेट्स भी सोल्ड होंगे ताकि ये पैसा रिकवर हो पाए. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, इस एग्जाम्पल को भूलना नहीं है. यू कैन सी पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, मीनिंग देयर पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ द फर्म डेट्स. दैट इज जो पर्सनल, देयर पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स, मेरे अपने एसेट्स. फॉर एग्जांपल दिस इज माय ईयरबड्स, दिस इज माय फोन, दे विल बी गॉन. तो मुझे कीपैड वाला फोन लेना पड़ेगा. समझ रहे हो तुम? क्या तुम चाहते हो ऐसा हो सर के साथ? नहीं ना. थैंक यू. ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. 5th पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन अ पार्टनरशिप. नाउ 6th लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी. नाउ आई नो दैट यू नो कि कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कि कंपनी का ओनर अलग है और कंपनी का मालिक अलग है. फॉर एग्जांपल रिलायंस, तो अंबानी इज अ डिफरेंट मैन एंड रिलायंस इज अ डिफरेंट कंपनी. तो दे आर एसोसिएटेड कि वो उसका मालिक है, ट्रू, बट उनकी एंटिटीज अलग हैं. ये एक कंपनी है, ये उसका मालिक है. बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है कि ये पार्टनरशिप है और ये उसके पार्टनर्स हैं, उनकी अलग आइडेंटिटी नहीं है. पार्टनर्स और पार्टनरशिप साथ ही है. तो दैट इज द मेन पॉइंट. पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप, पीपी साथ है और सीसी दूर है, कंपनी दूर है और पार्टनरशिप साथ है. ऐसे याद रखना है. देख सकते हो, पार्टनरशिप डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स. पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं वही पार्टनरशिप बना रहे हैं. कंपनी में जो मालिक है वही कंपनी नहीं बना रहा है. कंपनी में अलग आइडेंटिटी, देयर इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी फॉर द कंपनी इटसेल्फ, देयर इज अ सेपरेट आइडेंटिटी फॉर द योर company's owner. So they are different persons. But in the case of partnership, there is no separate legal entity for the partners. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.